Good morning, students. Today's lecture is based on complexity analysis of divide and conquer algorithms. How we can calculate the complexities of any divide and conquer algorithm. So, in this lecture, we will learn to calculations of the complexity analysis of any divide and conquer algorithm. Basically, this lecture is on demand because most of the students are asking how we can calculate the complexity, or how we can solve recurrence relations, or how we can solve or calculate the complexity of recurrence relation. So that's why I am preparing this video lectures. So there are many techniques to calculate complexity or runtime complexities of any divide and conquer algorithms in terms of the asymptotic notation, but two of them, one is master theorem and another is the substitution technique. Both are most important and useful technique to calculate complexity of divide and conquer recurrence relation. Master theorem is the fast technique to calculate the complexities of any divide and conquer algorithm, but it is used for a specific pattern, where the substitution technique is the traditional technique to calculate the time complexity of divide and conquer algorithms. It is there is no foundations of any pattern in substitution method. But today's this video lecture is focused on master theorem, how we can calculate runtime complexity of a divide and conquer algorithm in fast and accurate way. तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल का यूज कर रहा हूँ कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मैकेनिज्म और रिकरेंस रिलेशन किस तरीके से वर्क करती हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये छोटी सी एल्गो लिखी है। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। हियर वी क्रिएटेड अ फंक्शन f where two parameter are passing in main function, one is the x and another is n. Now check the condition. If n is less than k, solve x directly. If n is less than k, solve x directly and return. Otherwise, if n is number of item in n, then we divide x into a subproblem of size n by b, call f recursively to solve each subproblem, combine the result of all subproblem. कि फॉर एग्जाम्पल इसको समझें कि मैं यहाँ पर एक इनपुट x है मेरा और एक प्रॉब्लम का साइज है n। अब मैंने देखा कि जो साइज है वो 1 है, ठीक है। अगर साइज n की वैल्यू 1 है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर n एक से ज्यादा हुआ तो हम क्या करते हैं, फिर हम डिवाइड करना चालू कर देते हैं सब प्रॉब्लम में जिसकी साइज होती है n बाई b। तो हम नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, धीरे धीरे 1 बाई 1 हम कॉल करते रहेंगे इस फंक्शन को, और जो हमारी प्रॉब्लम है मैंने उसको तोड़ते जाएंगे नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में। जैसे ही नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होंगी, हम सॉल्व करेंगे हर एक सब प्रॉब्लम को और उसके बाद कंबाइन करेंगे द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम। तो द above algorithm divide the problem into a subproblem, each of the size n by b, and also solve them recursively to compute the problem. And the extra work done for problem is given by fn. So the time to create the subproblem and the combine the result in the above procedure. तो इस प्रोसीजर में जो सब प्रॉब्लम्स को बनाने में जितना समय लगेगा आपको, ठीक है, फिर हर एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके बाद उन सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में तैयार करना। तो ये टोटल टाइम हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का काउंट होता है।
So according to the master theorem, the run times of the above algorithm can be expressed as, जैसे कि अगर हम इसका रन टाइम एनालिसिस करें तो रन टाइम क्या होगा, Tn is equal to ATNY plus Fn. This is the standard formula of any recurrence relations or divide and conquer algorithm to calculate the time complexities. In this N A N by B plus Fn. अब हम इसको समझेंगे कि क्या क्या है ये. तो Tn बेसिकली द टाइम टू कैलकुलेट, जो हमें टाइम कैलकुलेट करना है वो है. N क्या है, साइज ऑफ द प्रॉब्लम. A क्या है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इन द रिकरेंस एंड A इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इन द रिकरेंस कि A की वैल्यू रहेगी कि आपने कितनी बार सब प्रॉब्लम क्रिएट करी है. मतलब सपोज करो कि जैसे बाइनरी सर्च है, आप लोग बाइनरी सर्च देखा कि जहाँ पर की लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, फिर आप मिडिल से एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट तैयार करते हो और अपना नंबर ऐसे ढूंढते जाते हो. तो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी सब प्रॉब्लम बनाई, कितनी सब लिस्ट बनाई, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा A, वेयर N बाई बी साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम. हर एक सब प्रॉब्लम में का साइज क्या है वो बताएगा हमारा N बाई बी. Fn कॉस्ट ऑफ वर्क डन आउटसाइड द रिकर्सिव कॉल्स. रिकर्सिव कॉल के अलावा हमें एक्स्ट्रा जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, कि लाइक डिवाइडिंग इनटू सब प्रॉब्लम्स, जैसे कॉस्ट ऑफ कंबाइनिंग देम टू गेट द सॉल्यूशन, कि हम एक फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए. सब प्रॉब्लम्स हमारी कन्वर्ट हो रही हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है कि उन सब प्रॉब्लम्स को कंबाइंड करने में, ठीक है ना. तो वो जो है जो कंबाइंड करना है सब प्रॉब्लम्स को, वो Fn है कि कितना टाइम लगेगा आपको सब प्रॉब्लम्स को कंबाइंड करने में, वो Fn दिखा रहा है हमारा. तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी रिकरेंस रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने का, कि Tn इज इक्वल टू ATNY प्लस Fn, वेयर A इज द सब प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इन द रिकरेंस है कि आपकी कितनी सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. N बाई बी क्या है, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, हर एक सब प्रॉब्लम्स का साइज क्या है N बाई बी. एंड Fn क्या है, जो कंबाइंड करने में हमें ईच सब प्रॉब्लम को जो टाइम लगेगा वो हमारा बेसिकली Fn होगा. Not all recurrence relation can be solved with the uses of the master theorem. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मास्टर थ्योरम एक स्पेसिफिक पैटर्न के लिए वर्क करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने यहाँ पर एक पैटर्न आ जाता है Tn इज इक्वल टू साइन एन, तो इस केसेस के लिए मास्टर थ्योरम वर्क नहीं करेगी. ठीक उसी तरीके से अगर Tn इज इक्वल टू 2Tn बाई 2 प्लस 2n, अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, जैसे जो 2n है ये पॉलिनोमियल टाइम नहीं है, तो इस टाइप के पैटर्न के लिए हमारी मास्टर थ्योरम वर्क नहीं करेगी. ठीक है ना. अनदर वे ऑफ मास्टर थ्योरम दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन रनिंग टाइम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम इफ द रिकरेंस इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. अब अगर आपके पास जो रिकरेंस फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म को, उस पैटर्न को देखिए. अगर आपको इस तरीके से कोई पैटर्न समझ में आ रहा हो, like Tn is equal to ATN by plus theta n की पावर k log पावर Pn, ये एक पैटर्न है. अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि इस पैटर्न को आपको गिवन रहेगा. ये पैटर्न अगर आपको इस तरीके का पैटर्न मिलता है तो आप मास्टर थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हैं. जैसे कि इस पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो देखिए कैसे होता है कि वेयर n इज इक्वल टू साइज ऑफ द प्रॉब्लम, जैसा कि हमने पहले ही देखा है. एक है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इन द रिकरेंस, जो ऑलरेडी आप देख चुके हो. n बाई बी साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम्स, वो भी आप देख चुके हो. b इज ग्रेटर देन 1, b की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए 1 से. k की वैल्यू इज इक्वल टू या बराबर होना चाहिए या बड़ी होना चाहिए 0 से. एंड p इज अ रियल नंबर, p क्या हो सकता है, एक रियल नंबर. तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, हर एक वैल्यूज को यहाँ पर हमने स्पेसिफिक कर दिया है. अब सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है आपको अपने एग्जाम्पल के हिसाब से. ठीक है.
नाउ अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा मास्टर थ्योरम का पैटर्न है, तो अब हम जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे उनके केसेस क्या हैं इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपने स्टडी करी, अब उसके बेसिस पे मैं कुछ केसेस बना रहा हूं। देन इफ a इज ग्रेटर देन b की पावर k, अगर आपको जो वैल्यू दी जाएंगी a b k p n की वैल्यू, तो आपको चेक करना पड़ेगा a इज ग्रेटर देन b की पावर k। अगर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती है आपकी, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, Tn इजिकल टू थीटा n log ba। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस, इफ a इजिकल टू b की पावर k, यदि b की पावर k और a दोनों बराबर होते हैं तो आपके पास यहाँ 3 केस आएंगे। पहला केस, इफ p इज ग्रेटर देन -1, अगर p बड़ा है -1 से, देन थीटा n इजिकल टू थीटा Tn इजिकल टू थीटा n log ba log p प्लस 1 n। सेकेंड केस, if p is equal to -1, then Tn is equal to theta n log ba log n। And third one, if p is less than -1, then theta n is equal to Tn is equal to theta n log ba। ये जो केसेस हैं ये एग्जाम्पल से आपको आगे समझ में जाएंगे। बस ये चीज आपको, ये जो एक स्लाइड दिख रही है इसमें जो वैल्यूज, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस एक ये पैटर्न जो मैंने लिखा है स्टैंडर्ड, इसको आपको रिमेंबर रखना है। तो आप मास्टर थ्योरम का यूज करके किसी भी डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रिकरेंस रिलेशंस का आप रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हो। सिमिलरली एक और बचा था, इफ a इज लेस देन b की पावर k, देन इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन Tn इज इक्वल टू थीटा n की पावर k log Pn। इफ p इज लेस देन 0, देन Tn इज इक्वल टू थीटा n की पावर k। ये तीनों पैटर्न जो है आपको मास्टर थ्योरम में डायरेक्ट अप्लाई करना है और आपको कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने होगी। अब हम देखते हैं एक एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इस पैटर्न जो है, ये पैटर्न और ये चीज आपको याद रखना है। अब आपको जैसे ये याद हो जाए, आपको अप्लाई करके देखना एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बाइनरी सर्च है, तो बाइनरी सर्च का जब हमारा जो Tn जनरेट होता है वो क्या होता है, Tn/2 प्लस विगो ऑफ 1। ये हमने एक केस लिया, ठीक है, एक रिकरेंस रिलेशन ली जिसमें हमें ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। अब इस रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसको निकालना है। तो आपको इस वाले पैटर्न को समझना पड़ेगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली, कि देखिए क्या वही पैटर्न है कि नहीं है। तो आप जैसे ही इसकी स्टडी करेंगे और इसकी, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें से जो जो वैल्यूज आपको चाहिए वो a, b, k एंड p। जैसे कि a क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। a बाई डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b इजिकल टू 2, ये दिख ही रहा है, b इजिकल टू 2। k आपको, जैसे कि यहाँ देखिए n की पावर k है, log की पावर p है, तो k और p यहाँ पर आपके इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो आपने k 0 रखा और p 0 रखा। जब आपने ये सारी वैल्यू 0 रखी, तो अब आपने यहाँ से पैटर्न मिलाना चालू किया कि a b क्या आ रहा है। तो जैसे ही आपने रखा b की पावर k, तो b मतलब 2 की पावर k, 2 की पावर 0 मतलब 1। जैसे ही आपने रखा तो ये मिलेगा a इज इक्वल टू 2 की पावर 0 मतलब 1। हाँ, तो a इज इक्वल टू b की पावर k, मतलब b की पावर k इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 मतलब this। और p की वैल्यू क्या है, 0, मतलब p की वैल्यू क्या है, -1 से ज्यादा है। अब आपको ये केस मैच करना है यहाँ पर। तो देखिए आप इस वाले से मैच कर रहे हो कि a इज इक्वल टू b की पावर k एंड p इज ग्रेटर देन -1। तो अब डायरेक्ट आपका ये केस मिल गया। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा n log ba log p प्लस 1 n। जैसे ही आपने ये वैल्यूज रखी कि थीटा n log ba log p प्लस 1 n, अब पुट द वैल्यू ऑफ b a p, आप वैल्यू पुट करिए। जैसे log b a, b की वैल्यू 2, यहाँ 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, log ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1
आपके सामने ही है, 0 आ जाएगा, n की पावर 0 मतलब 1। अब आपने यहाँ रखा log p प्लस 1 मतलब p की वैल्यू 0 प्लस 1 मतलब log n, तो सीधा सीधा ये वैल्यूज आपकी 0 आ रही है और यहाँ से आपका log n मिलेगा, तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थीटा log ऑफ n। तो ये बाइनरी सर्च का एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस on, 2tn/2 प्लस बिग O ऑफ n। अब इस पैटर्न को आप अपने स्टैंडर्ड पैटर्न से मिलाइए, ठीक है। तो ये पोर्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल, और बिग O ऑफ n जो दिख रहा है वो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, n की पावर k आपको मिल गई, लेकिन log pn नहीं मिला, ठीक है। मतलब p की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन k की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो अब देखिए a क्या है, 2 दिया है, b 2 दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 0। आप पुट करिए b की पावर k इज इक्वल टू 1, b की पावर k इज इक्वल टू 1, b क्या है 2, k की पावर 1 मतलब 2, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, a इज टू 2 दोनों आएगा, और p इज ग्रेटर देन -1, p इज इक्वल टू 0 मतलब -1 से, तो अगेन केस 2 का a, अगेन केस 2 का ये वाला आपका, तो सेम आपने फिर से रखा कॉम्प्लेक्सिटी में, देखिए यहीं आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, n log b a, b2 a2, 2 मतलब log की वैल्यू 1, n1 log p 0 है मतलब log n log n, ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी आपने निकाल ली, मर्ज सॉर्ट। इसी तरीके से मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जिनको आपको खुद लगाना है, और अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा हो तो देन यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। और ये सारा जो मैंने स्टडी मटेरियल्स हैं इनको तैयार करने के लिए मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने पूरा स्टडी मटेरियल्स को तैयार किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अब आपको ये क्वेश्चंस इसके बेस पर सॉल्व करने हैं और रिजल्ट को तैयार करना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।